Everyone, in this video I will discuss important MCQs of computer networks. Topic is IP addresses. All the MCQs will be related to IP addresses, and these questions are very important if you are preparing for any exam related to computer science, because computer network is the main subject, core subject. So let's start. First question is, how many versions of IPs are there? Options are 4 version, 3 version, 2 versions, 1 version. The right answer is option C. There are 2 versions of IP. 2 versions which are IPv4 and IPv6. इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन IPv का मतलब IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन. So right answer is option C. Next question is, version 6 of IP address has how many bits? 64 bits, 128 bits, 32 bits, 256 bits. Version 6. So let me tell you that there are two versions, IPv4 and IPv6. IPv4 is of 32 bits and IPv6 is of 128 bits. So its right answer is version 6 of IP address has how many bits? 128 bits. So right answer is option B. Fine. Next, which of the following address belongs to class A? So these are some addresses, and which of the address belongs to class A? Now, how we can find address belongs to which class? So let me explain you. So see, there are actually 5 classes. Class A is 0 to 127. Class B 128 to 191. Class C 192 to 223. Class D 224 to 239, and class E 240 to 255. Here I am talking about first octet. Fine. IP address has 4 octets. For example, this. So 4 octets, and I am talking about first octet. How you can identify IP address belongs to which class? By using first octet only. Fine. You can identify IP address belongs to which octet from the which class from the first octet only. Fine. So here see, question is which of the address belongs to class A, and class A first octet is 0 to 127. So this is actually the first octet. Fine. This is the first octet and 0 to 127 belongs to class A. So right answer is option A. Next, which of the following is correct IPv4 address? Let us consider 5 options one by one. Fine.
So see here 124 first octet, second octet, third octet, fourth octet, fifth octet. So this is wrong. Okay. And in any octet, for example, this is the IP address x.x.x.x, and in any octet I can have maximum 255. That is the broadcast address. So 0 to 255. Fine. C, option C. Let us see the option C. Here it is 300, so it is also wrong. And here it is a combination of binary as well as a decimal, again wrong. Now two options are left, option B and option E. Fine. Option B is also false because 0 1, it is binary, so it is false. So right answer is option E. So option E is the correct IPv4 address. Next, which of the following IP address can be used as a loopback address? Very important question, and you have to remember loopback address is this one, option B, 127.0.0.1. Next, what IP address class allocates 8 bits for the host identification part? Now, as I have explained, IP address is consist of 4 octets, and some octets belongs to network and some octets belongs to host, and it depends upon the IP class. So let me explain you. Class A. In class A, first octet belongs to network and other 3 octets belong to host. In class B, first 2 octets belongs to network and other 2 octets belongs to host. In class C, first 3 octets belongs to network and last option belongs to host. Fine. And one octet is of 8 bits. Fine. So question is, what IP address class allocates 8 bits for the host identification? And it means I have to find the class which has only one octet for host, because one octet is of 8 bits and that class is class C. So right answer is option C. Next, which of the following IP address class is multicast? And you have to remember it. I have explained class A, class B, class C, class A, class B, class C. And what you need to remember is class D is for multicast. So right answer is option D. Next, all IP addresses are divided into network address, and I have already explained this is the IP address and it is divided into 2 parts, network address and network address and host address. So option C. Next, MAC addresses work in data link layer. You also need to remember this thing. Sometimes there is a question, MAC addresses work in which layer of OSI model? In the description box I will also post the link of questions related to
OSI model. Important questions related to OSI model. So this is another important thing that you have to remember, that MAC addressing works in data link layer, and where IP addressing works. So IP addressing works in, yes, network layer. This you have to remember. Next, what range of addresses can be used in the first octet of class B? So I have just explained, see here. In the first octet, class A 0 to 127, class B 128 to 191, class C 192 to 223, class D 224 to 239, class E 240 to 255. So question is, what range of addresses can be used in the first octet of a class B network? And I have already explained. So right answer is option D. Next, which of the following is the broadcast address for a class B network ID using the default subnet mask? Class B, and you know already, class B has first two octet network and rest two octets host. And broadcast address means all ones. Broadcast address means 255. Fine. So which of the following is the broadcast address for a class B network ID? Here see, option A. Only last octet is 255. Wrong. Because in class B we have two octets for host. Option C, 3. Again wrong. Option D, all are 255. Again wrong. Right answer is option B. Simple. So right answer is option B. Next, IP addresses are represented by 16-bit decimal numbers, 32-bit binary number, 8 set of 4-bit decimal number, 8-bit binary number. And IP addresses I have already explained. IPv4 32-bit binary, the IPv6 128-bit binary. Next, identify the class of this IP address. And for identifying the class, I have to look for first octet, and it is 229. Fine. So let us again check. And 229 is in this class D. Fine. So identifying, so this address belongs to class D, because from the first octet I can find the class, and I have already explained. Class A 0 to 127, class B 128 to 191, class C 192 to 223, class D 224 to 239, sorry. So this address belongs to class D. Next, how many classes are there in IPv4? Already explained. How many classes? 5 classes. Class A, class B, class C, class D. Class A, B, C I have explained. Class D is for multicasting, and class E for scientific. It is reserved actually, class E, for experiment works and for military IP or for any scientific work. So how many classes are there? 5. Next, what part of
this address is the network ID, assuming a default subnet mask. Now see, here first octet is 192. First octet is 192, it means it belongs to class C. And in class C, we have first 3 octets as network. So in class C, we have first 3 octets as network. So which will be the network address? Obvious, this will be the network address, because in network address, in network ID, there are 3 octets. So it is the network address. Fine, so it's very simple. So in this video I have explained basic questions related to IP addresses, which will be very helpful to you. I have explained IPv4, IPv6 full form. IPv4 is of 32 bits, IPv6 is of 128 bits. I explained different classes. I have explained network ID, host ID. Fine, how you can identify a particular class. So this I have covered in this lecture. So I hope it will help you in preparing competitive exams. So thank you. Hello everyone, in this video I will discuss important MCQs of computer networks reference models, OSI model and TCP IP model. These questions are very important for any exam related to computer science, like UGC NET exam, GATE computer science exam, any exam, PGT computer science. So these are very important models, OSI model and TCP IP model. So let us discuss these MCQs. So first question is, how many layers are present in the internet protocol stack TCP IP model? So TCP IP की फुल फॉर्म क्या है? एक तो आपने ये याद रखना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, and IP stands for internet protocol. So how many layers are present in the internet protocol stack? So options हैं 5, 7, 6 और 10. अब अगर आप इस क्वेश्चन को सर्च करो कि हाउ मैनी लेयर्स आर देयर इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक, तो TCP IP में कुछ वेबसाइट्स या कुछ बुक्स 4 लेयर्स बताती हैं और कुछ वेबसाइट्स 5 लेयर्स बताती हैं. तो अगर तो 4 भी ऑप्शन हो तो फिर आपने 4 सेलेक्ट करना है. लेकिन यहाँ पे क्या है, कितनी लेयर्स हैं? तो 5. आप तो रेलिवेंट आंसर क्या है? 5. एक्चुअली हुआ क्या था, जब ओरिजिनली TCP IP मॉडल आया था तो देयर आर 4 लेयर्स. कौन कौन सी लेयर्स थी? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड होस्ट टू होस्ट लेयर, या इसको लिंक लेयर भी बोलते हैं. रैदर नेटवर्क लेयर का नाम था तब इंटरनेट लेयर. जब इसको रिवाइज किया गया TCP IP मॉडल को, तो क्या हुआ, 5 लेयर्स में इसको कन्वर्ट कर दिया. एप्लीकेशन लेयर तो थी, ट्रांसपोर्ट लेयर, और इंटरनेट लेयर का नाम चेंज करके नेटवर्क लेयर कर दिया, और लिंक लेयर को 2 लेयर्स में डिवाइड कर दिया जैसे OSI मॉडल में. डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर. सो हाउ मैनी लेयर्स आर देयर इन द TCP IP मॉडल? लेयर्स आपने याद रखनी है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है. तो कितनी है? 5. सो राइट आंसर इज 5 लेयर्स. सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लेयर्स इन द OSI रेफरेंस मॉडल. और OSI मॉडल में कौन सी लेयर्स हैं? इसमें हैं 7 लेयर्स हैं. तो नाम आपने याद रखना है. एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर है.
अगर आपको लेयर्स के नाम याद हो गए तो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। सॉरी, सेशन लेयर के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, और नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, finally physical. So there are 7 layers in the OSI. So these are the 7. Next, which of the following layer is an addition to OSI model when compared with TCP/IP? अब ये TCP है और ये है OSI, तो कौन सी लेयर्स एडिशनल हैं OSI में? आपको देखने से ही क्लियर हो जाएगा कौन सी हैं। एप्लीकेशन इसमें भी है, इसमें भी है, ट्रांसपोर्ट नेट, तो ये देखो ये 2 लेयर्स एडिशनल हैं। कौन सी? प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट, एप्लीकेशन लेयर इज इम्प्लीमेंटेड। एप्लीकेशन लेयर इम्प्लीमेंट कहाँ पे होगी? एंड सिस्टम में, NIC में। NIC की भी फुल फॉर्म याद रखनी है। NIC क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इथरनेट पे जहाँ पैकेट ट्रांसपोर्ट। तो एप्लीकेशन लेयर इज इम्प्लीमेंटेड इन द एंड सिस्टम। एंड टू एंड सिस्टम पे एप्लीकेशन लेयर इम्प्लीमेंट होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर इज इम्प्लीमेंटेड इन, ट्रांसपोर्ट लेयर भी कहाँ पे होती है इम्प्लीमेंट? एंड सिस्टम पे। तो ये याद रखना है यहाँ पे, एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड, ठीक है, ये एंड टू एंड सिस्टम पे होती हैं। सिमिलरली इसमें एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर आर इन implemented in end system. Application, presentation, session और transport. These first 4 layers are, ये कौन सी हैं? End to end are implemented in end system. So 5th question का भी right answer क्या हुआ? End system. Next, the functionality of the presentation layer include. Presentation layer की क्या functionality? डाटा कंप्रेशन, डाटा इंक्रिप्शन, डाटा डिस्क्रिप्शन, ऑल ऑफ द मेंशन। तो प्रेजेंटेशन लेयर की फंक्शनलिटी ये सारी की सारी है। डाटा कंप्रेशन भी करती है, इंक्रिप्शन भी, डिस्क्रिप्शन भी। तो अभी जस्ट फॉर योर हेल्प मैं यहाँ पे सारी लेयर्स की फंक्शनलिटी लिख दूँ। फिजिकल लेयर क्या करती, फंक्शनलिटी क्या क्या है? मल्टीप्लेक्सिंग है, बिट टू बिट ट्रांसफर है, ट्रांसमिशन मीडिया ये बताती है, स्विचिंग हमें ये बताती है, ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक्स सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फिजिकल। डाटा लिंक लेयर हमें क्या क्या बताती है, इन ब्रीफ लिख रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने में इजी रहे। डाटा लिंक लेयर फ्रेमिंग के साथ डील करती है, एरर कंट्रोल के साथ डील करती है, फ्लो कंट्रोल के साथ डील करती है, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल के साथ डील करती है। So these are some services provided by data link layer. नेटवर्क लेयर के साथ डील करती है। और भी फंक्शनलिटी होती है, मैं जस्ट बेसिक कवर कर रहा हूँ। ये IP एड्रेसिंग के साथ, कंजेशन कंट्रोल के साथ, सिमिलरली ट्रांसपोर्ट लेयर डील करती है पोर्ट एड्रेसेस के साथ, ठीक है, एंड टू एंड डिलीवरी के साथ, एंड टू एंड डिलीवरी,
एरर कंट्रोल के साथ और फ्लो कंट्रोल के साथ। सेशन लेयर जो है दैट डील्स विद डायलॉग कंट्रोल, सिंक्रोनाइजेशन, सेशन मैनेजमेंट, ये इनके साथ डील करते हैं। सिमिलरली प्रेजेंटेशन लेयर डील्स विद इंक्रिप्शन, compression, fine, data translation, it deals with these services. So presentation layer की कौन सी फंक्शनैलिटी आ गई? compression, encryption और description। इसीलिए मैंने ये सारा लिखा कि आपको एक आइडिया हो जाए। Delimiting and synchronization of data exchange is provided by, ये अभी मैंने क्या बताया, सिंक्रोनाइजेशन कौन करता है? सेशन लेयर। राइट आंसर इज सेशन लेयर। In OSI model, when data is sent from device A to device B, the fifth layer to receive data at B. फिफ्थ लेयर कौन सी होगी? बी पे। फिफ्थ लेयर क्या होता है? सेंडर साइड भी यही सेम लेयर्स है और रिसीवर साइड भी यही सेम लेयर्स है। तो फिफ्थ लेयर कौन सी होगी? ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ लेयर कौन सी है? सेशन लेयर। तो राइट आंसर इज सेशन लेयर। ठीक है, OSI मॉडल में। इन TCP/IP मॉडल व्हेन डाटा इज सेंट फ्रॉम डिवाइस A to B, पहले OSI मॉडल का पूछा आपने। नाउ इन TCP/IP मॉडल व्हेन डाटा इज सेंट फ्रॉम डिवाइस A to डिवाइस B, द फिफ्थ लेयर टू रिसीव डाटा। TCP/IP में क्या है? ये 5 लेयर है और यही 5 रिसीवर साइड होंगी। तो फिफ्थ लेयर कौन सी है? 1 2 3 4 5। तो फिफ्थ लेयर कौन सी है? एप्लीकेशन लेयर। तो राइट आंसर इसका क्या आ गया? एप्लीकेशन लेयर। इन द OSI मॉडल, एज ए डाटा पैकेट मूव्स फ्रॉम द लोअर टू अपर लेयर्स, हेडर्स आर। ये OSI मॉडल है। इसमें क्या है? डाटा पहले सेंटर साइड ऐसे मूव करेगा, मतलब फ्रॉम अपर टू लोअर लेयर, और रिसीवर साइड लोअर टू अपर लेयर मूव कर। तो सेंटर साइड पे क्या होता है? जैसे ही डाटा मूव करता है एक लेयर से दूसरी लेयर, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होती है। ठीक है, तो जब आपने याद रखना है सेंटर साइड पे क्या होता है, हेडर जो है सेंटर साइड पे, मतलब सेंटर साइड क्या होगा? अपर टू लोअर लेयर, और क्या होगा? हेडर्स और हेडर्स ऐड होते हैं। और रिसीवर साइड मतलब इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी? लोअर टू अपर, यहाँ पे अपर टू लोअर होगा। ठीक है, रिसीवर साइड लोअर टू अपर, और हेडर्स क्या होंगे? रिमूव होंगे। हेडर्स आर रिमूव। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, OSI स्टैंड्स फॉर, OSI की फुल फॉर्म याद रखेंगे। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट, which OSI layer allows the transmission and reception of data segments to session layer? सेशन लेयर को कौन सा डाटा रिसीव करते हैं? और फ्लो कंट्रोल, एक्नॉलेजमेंट, सीक्वेंस नंबरिंग कौन करता है?
सेशन लेयर के नीचे वाली लेयर कौन सी है? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो राइट आंसर इज ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शंस भी आपने याद रखने हैं। कौन से हैं? फ्लो कंट्रोल है, सीक्वेंसिंग है, मैसेज एक्नॉलेजमेंट है। TCP/IP मॉडल डज नॉट हैव दिस लेयर बट OSI मॉडल हैव दिस लेयर। अब सिंपल सी बात है, OSI TCP में इनमें से कौन सी लेयर नहीं है? मैंने अभी लेयर्स लिखी थी, उसको देख लो ध्यान से, इजी क्वेश्चन है। तो TCP/IP में कौन सी लेयर नहीं है? सेशन लेयर नहीं है। नेक्स्ट, विच लेयर इज यूज टू लिंक द नेटवर्क पोर्ट लेयर्स एंड यूजर्स पोर्ट लेयर्स? कौन सी लेयर इनको लिंक करती है? अब ये देखो, मैंने पहले बताया था, ये कौन सी हैं? दीज आर एंड टू एंड, मतलब दीज फोर आर यूजर पोर्ट लेयर्स। और ये कौन सी हैं? नेटवर्क पोर्ट। और कौन इनको लिंक करती है? ये यूजर पोर्ट्स हैं और ये नेटवर्क पोर्ट। तो कौन सी लेयर लिंक कर रही है इनको? ट्रांसपोर्ट लेयर। So which layer is used to link the network port layer and users port layer? Transport layer. Which address is used on the internet for employing the TCP/IP protocol? ये भी याद रखना, कौन से एड्रेस कहाँ से होते हैं, कौन सी लेयर में होते हैं। तो TCP/IP में तो ये सारी हैं मॉडल में, फिजिकल एड्रेस भी है, लॉजिकल एड्रेस भी है, पोर्ट एड्रेस भी है, स्पेसिफिक एड्रेस भी है, और ऑल ऑफ द। और क्या याद रखना आपने? डाटा लिंक लेयर में कौन सा एड्रेस यूज होना है? फिजिकल एड्रेस, तो हम मैक एड्रेस भी यूज। नेटवर्क लेयर पे कौन सा एड्रेस यूज होना है? लॉजिकल, और इसको हम IP एड्रेस भी बोलते हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा एड्रेस यूज होना है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज होना है पोर्ट एड्रेस, इसको हम स्पेसिफिक एड्रेस भी बोलते हैं। तो ये याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज TCP/IP मॉडल वाज डेवलप्ड। पहले आया था, साइमल्टेनियसली आया था, आफ्टर आया था कि कोई लिंक नहीं है? देखो, ये क्वेश्चन कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। आमतौर पे हमें लगता है कि पहले OSI मॉडल आया था और फिर उसमें लेयर रिमूव करके TCP/IP बन गया, मतलब TCP/IP हमें लगता है कि बाद में आया था, लेकिन ऐसा नहीं है। TCP/IP डेवलप पहले हो गया था। So TCP/IP मॉडल वाज डेवलप्ड प्रायर टू OSI मॉडल। नेक्स्ट, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी आ जाए, जहाँ एंड टू एंड डिलीवरी आ जाए, याद रखें। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, जहाँ पोर्ट एड्रेस, जहाँ एंड टू एंड डिलीवरी आ जाए, तो कौन सी लेयर है? ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट, प्रोसेस के साथ कौन सा एड्रेस डील करता है? पोर्ट एड्रेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। विच एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए प्रोसेस ऑन ए होस्ट? प्रोसेस को कौन आइडेंटिफाई करता है? प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है पोर्ट एड्रेस। नेक्स्ट, which layer provides the services to user? सर्विसेज यूज़र, तो यूज़र किस लेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है? तो सबसे टॉप वाली लेयर के साथ, तो एप्लीकेशन लेयर। विच लेयर प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू यूज़र? एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसमिशन डाटा रेट इज डिसाइडेड। डाटा रेट कौन सी लेयर डिसाइड करती है? अब डाटा रेट लास्ट लेयर में ही जाके डिसाइड होगी, क्योंकि उसी में ही बिट टू बिट डिलीवरी करनी है। तो लास्ट लेयर कौन सी है? फिजिकल लेयर है। नेक्स्ट, विच इज़ द ओनली लेयर ऑफ OSI मॉडल दैट प्रिवेंट्स इटसेल्फ फ्रॉम एडिंग इट्स ओन हेडर टू डाटा? अभी मैंने बताया था कि सेंडर साइड पे क्या होता है, अपर टू लोअर लेयर पे डाटा जाता है, और जैसे डाटा मूव करता है हेडर्स आर एडेड। उसने बोला कि कौन सी लेयर अपना हेडर ऐड नहीं करती, तो कौन सी होगी? ऑब्वियस है, जो लास्ट में लेयर होगी वो ही अपना हेडर ऐड नहीं करेगी। तो कौन सी है लास्ट में लेयर? फिजिकल लेयर। नेक्स्ट,
Which combinational package of layers in OSI model is equivalent to application layer of TCP? कौन सा कॉम्बिनेशन मॉडल है? ये देखो लेयर्स है। इसमें क्या है, इसमें देखो ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डाटा और फिजिकल, इसमें भी है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डाटा और फिजिकल। एप्लीकेशन लेयर किन लेयर्स को मिला के बनी? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर। तो कहाँ पे आंसर? सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, which protocol of TCP/IP exhibits its usability in applications requiring instant and essentially reliable delivery operations? इंस्टेंट डिलीवरी किस में होगी? इंस्टेंट डिलीवरी इज यूजेबल इन कहाँ पे? TCP/IP में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोटोकॉल असिस्ट इन प्रोवाइडिंग द रिमोट लॉगिन एक्सेस? रिमोट लॉगिन एक्सेस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? टेलनेट। विच प्रोटोकॉल असिस्ट इन प्रोवाइडिंग रिमोट लॉगिन एक्सेस? टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेसिंग इज द सर्विस ऑफर्ड बाय द IP विच बेसिकली डील्स विद। एड्रेसिंग क्या है? एड्रेसिंग डील्स विद ऑल ऑफ द अबव। The provision of sequencing the datagram, the determination of route in order to delivery data. Addressing का मतलब क्या है? Addressing का मतलब है, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया। Addressing actually deals with determination of route in order to deliver data to destination host. तो लास्ट 2-3 क्वेश्चंस में थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, तो फिर से रिपीट करता हूँ। Which protocol of TCP/IP exhibits its usability in applications requiring instant and essential reliable delivery? Reliable delivery और instantly किस में आएगी? UDP में आएगी। और रिमोट लॉगिन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? आपने याद रखना है, टेलनेट। नेक्स्ट, एड्रेसिंग इज द सर्विस ऑफर्ड बाय द IP। एड्रेसिंग का पर्पस क्या है? एड्रेसिंग का पर्पस है द डिटर्मिनेशन ऑफ रूट इन ऑर्डर टू डिलीवर डाटा टू डेस्टिनेशन होस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ OSI मॉडल। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hello friends, in this video I will discuss important questions of networking for UGC NET Computer Science. So let us discuss one by one. First question is, in the IPv4 addressing format, the number of network allowed under class C address. The options are 2 raised to power 14, 2 raised to power 7, 2 raised to power 21, 2 raised to power 24. The right answer is 2 raised to power 21, because in class C 8 bits are used for host ID and 24 bits are used for network ID, and out of these 24 network ID, the leading 3 bits are fixed as 110. So remaining 21 bits can be used for different networks. Second question is, which transport layer protocol is used to support electronic mail? Options are SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, Internet Protocol, Transmission Control Protocol, User Datagram Protocol. Out of these, SMTP is the application level protocol and IP is the networking protocol, network layer protocol. The remaining two, TCP and UDP, are transport layer protocol, and remember, TCP is used for supporting electronic mail. Third question is, 3 एक्टिविटीज बताई गई हैं। फर्स्ट वन इज ईमेल सेंड करनी है मेल क्लाइंट से मेल सर्वर, सेकंड वन इज डाउनलोड करनी है ईमेल, थर्ड वन है ईमेल को चेक करना है। तो कौन सा प्रोटोकॉल किसके लिए यूज़ होगा? तो पहला है ईमेल सेंड करनी है, तो ईमेल सेंड करनी है तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होगा। सेकंड है ईमेल डाउनलोड करनी है, तो ईमेल डाउनलोड करनी है तो यूज़ होगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और ईमेल चेक करनी है ब्राउज़र में तो यूज़ होगा HTTP प्रोटोकॉल। सो राइट आंसर इज सी। फोर्थ क्वेश्चन, TTL फील्ड बताया गया है, वो किसके लिए यूज़ होता है? सो ऑप्शंस आर, इट कैन बी यूज्ड टू प्रायोरिटाइज पैकेट्स, to reduce delays, to optimize throughput, to prevent packet looping. The right answer is
इट इज़ यूज टू प्रिवेंट पैकेट लूपिंग। TTL क्या होता है? टाइम टू लिव। इसमें क्या है, इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होनी शुरू हो जाती है जैसे ही पैकेट एक नेटवर्क से दूसरे पैकेट पे जाता है। तो जैसे ही पैकेट के TTL फील्ड की वैल्यू 0 होगी, पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा ताकि पैकेट की जो लूपिंग है उसको प्रिवेंट किया जा सके। फिफ्थ क्वेश्चन, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल किस लिए यूज होता है? ऑप्शंस, फाइंडिंग IP एड्रेस फ्रॉम DNS, फाइंडिंग IP एड्रेस ऑफ डिफॉल्ट गेटवे, फाइंडिंग IP एड्रेस दैट corresponds to MAC, finding the MAC that corresponds to IP। राइट आंसर इज फाइंडिंग द MAC दैट corresponds to an IP एड्रेस। जैसे ही पैकेट नेटवर्क में आया तो नेटवर्क में जो पैकेट है वो किसी सिस्टम पे, पर्टिकुलर सिस्टम पे उसको डिलीवर करना है, तो उसके लिए उस IP एड्रेस को MAC के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज होता है। सिक्स क्वेश्चन, मैक्सिमम विंडो साइज बताना है फॉर डाटा ट्रांसमिशन यूजिंग सिलेक्टिव रिजेक्ट प्रोटोकॉल। सिलेक्टिव रिजेक्ट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है, उसमें मैक्सिमम विंडो साइज बताना है क्या होता है। तो ऑप्शन है 2n, 2n-1, 2n-1, 2n-2। द राइट आंसर इज 2n-1। सेवंथ क्वेश्चन, एक ऑर्गेनाइजेशन का बी क्लास का नेटवर्क है एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू फॉर्म सबनेट्स फॉर 64 डिपार्टमेंट्स। The subnet mask would be, options are, you can see the options. The right answer is 255.255.252.0 because organization wishes to form subnets for 64 department. So 64 department means 11111. 6 bits will be used for network address and 2 bits will be used for host address. So 6 bits 1111100 corresponds to 252. So right answer is 255.255.252.0. Here you can see the right answers. The size of the network ID is 16 bit in class B. So bits after 16 bits must be used to create 64 departments. So total 6 bits are identifying 64 different departments. So therefore subnet mask will be 255.255.252.0. I hope you like this video. Keep watching. Thank you. Friends, let us discuss important questions of networking for UGC NET Computer Science. First question is, in the slow start phase of the TCP congestion control, the size of the congestion window. The options are, does not increase, increases linearly, quadratically, exponentially. Right answer is D, increases exponentially. ये आपने याद रखना है, कंजेशन कंट्रोल में जब भी स्लो स्टार्ट होता है तो साइज ऑफ कंजेशन विंडो जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है ताकि कंजेशन को कंट्रोल किया जा सके। एक्सपोनेंशियली का मतलब कि अगर पहले पैकेट 2 सेकंड के बाद भेजे जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम पैकेट 4 सेकंड के बाद और उसके बाद 8 सेकंड के बाद एंड सो ऑन। सेकंड क्वेश्चन, क्लास बी का नेटवर्क है, सबनेट मास्क ये है, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट फाइंड करनी है। इसमें आप देख सकते हो सबनेट मास्क वाली जो बाइट है थर्ड है 248। ऑप्शंस हैं, राइट आंसर बताने से पहले हम देखेंगे 248 को जब हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होगा 11111000। सो 5 बिट्स इसमें 1 की आएंगी, आप देख सकते हो। राइट आंसर है 2046। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि 5 बिट्स 1 की आएंगी, बाकी सारी की सारी बिट्स 0 की हैं। सो आप देख सकते हो नंबर ऑफ वंस कितने हैं। 255 मीन्स ऑल वंस, 255 मीन ऑल वंस। नंबर ऑफ वंस है 21। अगर 1 है तो वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा, अगर 0 है तो वो होस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है होस्ट कितने हैं, तो होस्ट की बिट्स हुई 21, जो नेटवर्क की थी 32 माइनस 21, कितनी होस्ट की बिट्स हैं 11। सो 2⁻11 2048 होस्ट होंगे, लेकिन उसमें से 2 जिसमें सारे 1 हो वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, जिसमें सारे 0 हो वो नेटवर्क एड्रेस होता है। सो 2048 माइनस 2 कितना आंसर आ गया 2046। जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला है कि 2n-2 नंबर ऑफ होस्ट होते हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ बिट्स पर होस्ट आईडी। यहाँ पे होस्ट आईडी में बिट्स हैं 11। सो 2⁻11 माइनस 2 2046। थर्ड क्वेश्चन, मैक्सिमम साइज ऑफ डाटा दैट द एप्लीकेशन लेयर कैन पास। ऑप्शंस हैं, राइट आंसर इज एनी साइज। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, वो किसी भी साइज का डाटा सेंड कर सकती है। बाकी जो लोअर लेयर्स होती हैं वो डाटा को डिवाइड करती हैं। सो यू कैन सी द राइट आंसर इज एनी साइज डाटा।
फोर्थ क्वेश्चन, यूडीपी कौन यूज करता है एज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल? यूडीपी क्या होता है? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ऑप्शंस आर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट, डीएनएस, एसएमटीपी। टेलनेट रिमोट लॉगिन के लिए यूज होता है, डीएनएस इज डोमेन नेम सर्वर, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक चीज याद रखना है, एचटीटीपी, टेलनेट और एसएमटीपी जो है वो टीसीपी को यूज करते हैं, तो राइट आंसर इज डीएनएस। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन इज, बी क्लास का एड्रेस को हमने 6 बिट सबनेट नंबर अप्लाई करना है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट और मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट फाइंड करने हैं। ऑप्शंस ये दिए गए हुए हैं। अब इसमें 6 बिट का सबनेट नंबर है, इट मीन्स कि जो 1 है वो क्या होंगे, 6 होंगे जो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेंगे। सो 1 रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क को, तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होंगे, 2⁻6 - 2, 64 - 2, 62 सबनेट। राइट आंसर है 62 सबनेट। अब ये 1022 होस्ट कैसे आया? अब 6 बिट जो है वो सबनेट नंबर है, तो इसमें 2 बच गई, थर्ड बाइट ऑक्टेट में से 2 और लास्ट ऑक्टेट में से 8 और 2 जो 10 बिट्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगी होस्ट को। सो 2⁻10 - 2 कितने होस्ट आ गए, 1022 होस्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो ये वीडियो फिर से रिपीट करके देखें, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सीरीज में कंटिन्यूज करेंगे। देखने के लिए थैंक यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर यूजीसी नेट एंड गेट सीरीज 3। इसका पहला क्वेश्चन है, विच वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल हेल्प्स इन रिमोट लॉगिन? तो रिमोट लॉगिन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टेलनेट यूज होता है। बाकी ये पीओपी और आईएमएपी ईमेल के लिए यूज होते हैं। पीओपी है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, आईएमएपी है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, और एसएसएल है सिक्योर सॉकेट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम सेल इज कितने बाइट्स का होता है एटीएम सेल? तो एटीएम क्या चीज है? एटीएम इज द असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड जो कि टेलीकम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड है, विच इज डिफाइंड बाय द एनसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एटीएम सेल जो है वो 53 बाइट्स का होता है। नेक्स्ट, द एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल किस लिए यूज होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैक एड्रेस फाइंड करना, हमें आईपी एड्रेस पता हो तो उसके बेस पे मैक एड्रेस फाइंड करना। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो अगर मैक एड्रेस दिया हो तो आईपी एड्रेस फाइंड करना हो तो वो उसके लिए यूज होता है RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज होता है टू फाइंड द मैक एड्रेस कोरिस्पॉन्डिंग टू आईपी एड्रेस। नेक्स्ट, मैक्सिमम लेंथ ऑफ हेडर इन द टीसीपी सेगमेंट आईपी डाटाग्राम कितनी होती है मैक्सिमम लेंथ? अब हेडर क्या होता है? हेडर होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि हम पैकेट और डाटा में भेजते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे सेंडर का आईपी एड्रेस हो गया, या रिसीवर का आईपी एड्रेस हो गया, या कितने साइज क्या है फ्रेगमेंट्स का, ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो मैक्सिमम लेंथ क्या होती है हेडर की? तो मैक्सिमम लेंथ होती है 60 बाइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अगर यही क्वेश्चन होता है मिनिमम लेंथ क्या है, तो मिनिमम लेंथ होती है 20 बाइट्स। नेक्स्ट, किस लेयर में ओएसआई मॉडल की नेट बायोस सर्विसेज फंक्शन करती हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेशन लेयर में नेट बायोस सर्विसेज फंक्शन करती हैं। फादर ऑफ इंटरनेट किससे कहते हैं? तो फादर ऑफ इंटरनेट ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विंट कर्व को फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं। बाकियों के बारे में भी जानते हैं। एच एडवर्ड रॉबर्ट्स ने क्या किया था? इसने इन्वेंट किया था फर्स्ट पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, जो कि कमर्शियली सक्सेसफुल था। चक पैडल ने क्या किया था? इसने माइक्रो प्रोसेसर, ये डिजाइनर था माइक्रो प्रोसेसर का, 6502 माइक्रो प्रोसेसर का। और एडम ऑसबोर्न ने फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर को इसने इंट्रोड्यूस किया था। तो फादर ऑफ इंटरनेट क्या है? विंट सर्फ। एफटीपी का पोर्ट नंबर क्या है? एफटीपी क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका पोर्ट नंबर क्या है? पोर्ट नंबर के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपने थोड़े से पोर्ट नंबर याद करके रखने हैं, इंपॉर्टेंट। वो आपको नेक्स्ट किसी लेक्चर में बताऊंगा पोर्ट नंबर्स के बारे में। तो एफटीपी का पोर्ट नंबर क्या है? 23 इसका पोर्ट नंबर है एफटीपी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथरनेट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो ऑप्शन दिए गए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू इथरनेट नेटवर्क कंटेन्स बोथ मीडियम एक्सेस लेयर एंड फिजिकल लेयर, ये ऑप्शन सही है। मैक लेयर में कोलिजन कंट्रोल के लिए IEEE 802.3 जिसे हम इथरनेट बोलते हैं, CSM में CD यूज करता है, ये भी ऑप्शन सही है। IEEE 802.3 में कनेक्शन जो है वो यूजली कॉपर और फाइबर केबल के होते हैं, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। तो अकॉर्डिंग टू CSMA देयर इज ए प्रेडिक्टेबल और शेड्यूल टाइम फॉर एनी स्टेशन टू ट्रांसमिट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड करनी थी, तो फॉल्स स्टेटमेंट है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, सेगमेंटेशन इज डन इन। सेगमेंटेशन क्या होती है? जैसे कि हर नेटवर्क का एक लिमिट होती है, MTU जिसे बोलते हैं, मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। अगर डाटा ज़्यादा है तो डाटा को क्या करते हैं, सेगमेंट्स बना देते हैं, डाटा को अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो वो कौन सी लेयर में होती है? देखिए, अब डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर में तो वो होगी नहीं, और नेटवर्क लेयर तो पैकेट्स के साथ डील करती है, तो सेगमेंटेशन पहले से ही होके आएगी, ट्रांसपोर्ट लेयर में आएगी। तो राइट ऑप्शन क्या है? सेगमेंटेशन इज डन इन ट्रांसपोर्ट लेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।